नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु परिवार के सामने कमलेश मेहता आंटी जी की लिखी पुस्तक द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड की रीडिंग और नरेशन गुरु परिवार द्वारा की जाएगी। और हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि कमलेश मेहता आंटी जी ने अभी ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ मैं नीलम खरबंदा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji, Suresh Uncle, are you all able to hear me? You are audible, Aunty. Jai Guruji ki. Thank you for the confirmation. Jai Guruji Sangat ji, Jai Guruji Kamlesh Aunty. And starting off with a big thank you to Guruji for making the way, for granting the privilege for us to be in a satsang and have the privilege to listen to his satsangs, no matter where in the world we are. Listening to satsangs, especially those related by the Sangat who spent years in his sublime company, is such a big blessing for all of us. Thank you to all such Sangat that follow Guruji's hukam and share their experiences with us, either verbally or by penning them down, or both. We're so grateful to Kamlesh Aunty for penning her experiences and availing herself to grace the reading sessions with her presence. Listening in silence and soaking in every thought and emotion that she alludes is my favorite part. We're hoping that she can join, and I just got the confirmation that she has joined. So thank you so much, Aunty Ji, for joining. And thank you, Suresh Uncle, for getting the Shukrana Guruji Maharaj multilingual team to initiate the reading sessions of this book from March. Continuing with the series, Seema Kumar Aunty Ji shall today be reading the chapter 18, How Guruji Killed Your Ego, from the book, The Flowers of Gratitude by Kamlesh Mehta Aunty Ji. I am definitely not an expert on this topic or any topic for that matter, so I'm keenly looking forward to this session, for every session brings in depths and understanding that comes from all those that Guruji chooses to share their insights and satsangs. Seema Aunty Ji, I see you're here. Could you kindly unmute yourself and join the session? Jai Guruji, can you hear me? Yes, Aunty Ji. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Multilingual Group, Kamlesh Mehta Aunty Ji, Suresh Vasan Uncle, Neelam Aunty आपको और सब सेवादारों को और जो संगत इस प्लेटफॉर्म पे अभी मेरे को सुनेंगी और जो सुन रही हैं और जो सुनेंगी, सबको मेरा जय गुरुजी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि आज मुझे दोबारा आंटी की बुक पढ़ने का, फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का मौका मिल रहा है। और जो हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं, हम आदान प्रदान अपने सब व्यूज, वी एक्सचेंज आवर व्यूज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और हमने आंटी को भी सुना और हमारी जो गुरुजी की जर्नी में दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ये जो आज का चैप्टर है, हाउ गुरुजी किल्ड योर ईगो, आई वुड फर्स्ट रीड द एंटायर चैप्टर एंड देन जो मैंने इस चैप्टर से समझा और जो मेरे जो व्यूज हैं वो मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं कमलेश मेहता आंटी को कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो तो आपके इस बुक को, इस चैप्टर को समझने में तो आप मुझे माफ करिएगा। और जो आज गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, whatever messages, whatever I've understood in my journey, I will speak on this chapter. So I will first read the chapter. उसके बाद फिर मैं I will take point by point and within the time stipulation. Quote, Aunty says, dissolve your ego before it dissolves you. Ego can hamper your Guru Bhakti. When you surrender yourself to your Guru, you should also surrender all dark parts of your personality to your Guru, like ego, guilt, anger, or hurt. They can come in the way of the end goal of Guru Bhakti. I will narrate an incident where you will realize how a Guru
does not differentiate between his bhakts, and he only wants you to surrender to him with faith completely to him. An uncle used to visit Guruji Maharaj. One day he also brought his cousin with him. The cousin performed Guruji's seva in such a passionate way, that he became his favorite soon. The cousin was always very happy with the thought that Guruji Maharaj gave him so much seva, but strangely, uncle started becoming jealous of this fact very soon. He observed how the cousin is doing seva wholeheartedly and how Guruji was giving him more and more seva. This thought started entering his mind, that he has been coming to Guruji Maharaj for so long, and Guruji Maharaj has given all the seva to his cousin and not to him. He was always murmuring to himself and cribbed a lot about it. As Guruji is antaryami and he knows everyone's mind, one day Guruji called him and made him sit in front of him. He said, "Come and give all your ego and jealousness of your heart to me." This is so beautiful. Guruji hamare level pe aake, Guruji Maharaj further told him that, you know, one thing, that the moment your cousin entered the doorstep, he simply surrendered himself to me and uttered in his heart, "You are everything to me from today. You are my father, and I have come under your shelter. It is only you who will do everything for me." This is called total surrender, which is why he is my favorite disciple. You are yet to surrender to me in the same way as your cousin. Then Guruji Maharaj blessed him with lots of love and affection. Guruji Maharaj killed his ego this way. So we understand how Guruji makes you polished like gem of a person. We learn that when we enter a place of worship like Gurdwara, one must be humble and leave everything to the wish of Malik or Almighty. He will take care of you. Then Aunty ends with Rabindranath Tagore's quote, "We come nearest to the great when we are great in humility." So Sangaji, this was the chapter which I have assigned to read, and now I will start my thoughts on this chapter. So Aunty started the quote with, "Dissolve your ego before it dissolves you." So I feel the biggest example how your ego can dissolve you is Ravana. रावण सबसे बड़ा शिव भक्त, परम ज्ञानी, पंडित, और उसको भगवान शिव से बहुत वरदान मिले हुए थे, और वो आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का परम ज्ञानी था और वीणा बजाने में निपुण था. But he was egoistic and proud about his power and skills. He had boon of immortality. तो अब देखिए, इतना रावण के अंदर इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसने हम उसका क्या, अब हजारों सालों से हाउ वी आर ट्रीटिंग रावण. अब देखिए, जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे तो उनकी माता ने उनको बोला कि आपने रावण का अब विजय होके आए हो, तो उन्होंने अपनी माता को क्या जवाब दिया कि मैंने रावण को नहीं मारा, उसकी मैं अहंकार ने उसको मारा है. तो रावण ने प्राण त्यागते समय लक्ष्मण को बोला कि मैंने राम की शरण में आने में देर कर दी, कोई भी आप शुभ कार्य करना हो तो तुरंत करो. तो अब ये हमारे लिए क्या मैसेज है कि हमको गुरु जी की शरण में रहना है, और हम अगर थोड़ा जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, तो हमको पूर्ण रूप में इस हमारे गुरु जी से जुड़ना है, जो एक साक्षात परमात्मा है और हमको मिले हैं. ही इज आवर इटर्नल ट्रेजर इन लाइफ एंड डेथ. सो ये मेरा ईगो के ऊपर था. और संगत जी, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है. कल मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मैंने रावण का लिखा, तो आप देखिए, मुझे आधे घंटे के बाद एक संगत का कहीं से वीडियो आता है which was on रावण on the same language, and I picked up 1 or 2 words from there. तो गुरु जी को सब पता है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके वो अंदर है. I was very surprised. I sent her a message कि आप भी मुझे वीडियो कैसे भेजा, अभी तो दशहरा भी नहीं आ रहा है. तो ये सब गुरु जी की लीला है. He knew that I was going to speak on this topic because ये जो आंटी का कोट था, I felt रावण is the ideal example. आप कौरवों को भी देखिए, वो भी कैसे अपने अहंकार की वजह से
उनका सर्वनाश हुआ। अब देखिए नेक्स्ट आंटी ने चैप्टर में बोला, सरेंडर योर ईगो, एंगर एक्सेट्रा, दे कम इन योर वे टू गुरु भक्ति। तो ये क्या है? ये जो 5 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संगत जी, ये मैं कल पढ़ रही थी तो मेरे को एक इतना ब्यूटीफुल मैंने एक पढ़ा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने आज तक कभी किसी के भी कहीं पढ़ा नहीं था, जो कल गुरुजी ने मुझे पढ़वाया। इसमें मैंने पढ़ा कि गुरु नानक जी इनको 5 शूरवीर चोर कहते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये बहुत ताकतवर चोर हैं, जिन्हें हमें सत्य, संतोख, दया, धर्म, सत्य से जीतना है। हमें अपने अंदर के ये जो अंदर से इन सबको अपने को प्रकट करके इन चोरों को जीतना है। तो गुरु नानक जी कहते हैं, जिन मिल मारे 5 शूरवीर, ऐसा कौन बनी रहे? Who is that strong योद्धा who can kill these 5 thieves? और हमें अब क्या करना है? इन 5 थीव्स को कैसे उनसे जीतना है? हमको एटलीस्ट ट्राई करना है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नॉट बी परफेक्ट, बट एटलीस्ट हम गुरु जी के शरण में आके हम ये प्रयास कर सकते हैं। हमें क्या करना है? कन्वर्ट योर डिजायर्स इनटू गिफ्ट। हमें देना सीखना चाहिए। जो हम इच्छाएं करते हैं, हमें उसकी बजाय हम देना सीखें। जरूरी नहीं है कि आप अपने धन या वस्तुएं दीजिए, आप अपना समय दे सकते हैं, आप प्यार दे सकते हैं, केयर दे सकते हैं। और सब धर्मों में ये भी बोला गया है कि आप जो कमाते हैं ईमान की कमाई में से भी आप शेयर करिए। और गुरु जी भी कहते थे कि आप दान करिए, एक हाथ से दान करिए तो दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। तो हमें अपनी डिजायर्स को कैसे विन करना है, देना सीखना चाहिए। उसके बाद सेकंड है कन्वर्ट क्रोध इनटू संतोख, कंटेंटमेंट। और ये लास्ट वीक चैप्टर था और मैंने इसके ऊपर कंटेंटमेंट के ऊपर भी एंड में काफी बोला था। सो आई विल गो टू ग्रीड, लोभ। लोभ का क्या मतलब है? आपका सेल्फ इंटरेस्ट। आप हर समय चाहते हैं कि आपको ये मिले, आप लोभी रहते हैं। तो इनटू इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको दया में करना है। तो हाउ इसको कैसे कन्वर्ट होगा? कंपैशन शो करिए। ट्राई टू ट्रीट पीपल एज इफ दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू। सरबत का सोचिए, ना कि अपना। और यही गुरुजी कहते थे कि सरबत का भला करिए, सरबत का सोचिए, आप भी उनमें आ जाते हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा ये अहंकार के ऊपर चैप्टर है संगत जी, ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे को गूज बम्प्स हो गए कि ये मेन जो है अहंकार, फॉल्सहुड, ये सबसे मुझे मतलब बहुत ही पसंद आया। तो इसमें क्या है कि फाइट विथ सत्य। सत्य क्या है? हम सब एक हैं, द वर्ल्ड इज वन। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो आप ये जो अहंकार को है, इसको सच से जीतिए और कन्वर्ट अहंकार इनटू एक ओंकार। ये मुझे इतनी डीप बात लगी कि व्हाट इज एक ओंकार? एक ओंकार इज परमानेंट ट्रुथ। मतलब ये आज सच, जुगात सच, नानक होसी भी सच, जो हम अपने हर सत्संग में ये एक ओंकार का हम बोलते हैं। और ये आज मुझे समझ आया कि हमें अपने अहंकार को उतार के एक परमानेंट ट्रुथ, सच की तरफ जाना है कि वो ईश्वर एक निराकार है, उसकी तरफ हमको जाना है। और ये हमको गुरुजी लेके जा रहे हैं। उसके बाद सी द लाइट इन एवरीवन। अब देखिए बड़े मंदिर में भी ये मेरे को एक पुरानी संगत से मैंने सुना था, बहुत प्यारा, वो गुरुजी की संगत है पुरानी। उन्होंने कहा था कि जो ये मंदिर की सीढ़ियां बनी है, आप देखिए बड़े मंदिर जाते हैं उसमें लिखा होता है डू नॉट टच। उसमें उन्होंने बोला कि ये जो सीढ़ियां गुरुजी ने बनाई हैं, ये जब आप चढ़ते हैं तो आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको कोशिश करके त्याग, आपको ये याद दिलाती है सीढ़ियां कि आपको ये सब छोड़ना है, तब आप इतने बड़े ईश्वर के द्वार के अंदर जाइए। और आंटी हैज मेनली टॉक्ड ऑफ ईगो इन दिस चैप्टर, कि उन्होंने कैसे अंकल की गुरुजी ने उनको समझाया और उनकी ईगो को किल करा। सो मैं अब थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टॉक ऑन ईगो, क्योंकि ये भी मैं आगे बताऊंगी। कोइंसिडेंस नहीं है कि आज मुझे ईगो के ऊपर क्यों रीडिंग मिली है, और ये भी गुरुजी की लीला है। तो इसमें देखिए मैं शुरू करती हूँ। कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति का मन में है बहुत उल्लास, मन मनसा मांझे नहीं होन चाहते दास। आपने अपने मन को साफ नहीं किया और आप चाहते हैं कि हम गुरु के भक्त बने। आप कैसे बन सकते हैं?
जब तक आप अपना मन को साफ नहीं करेंगे। और अभी जैसे मैंने बोला सदियों से ईगो के बारे में बोला जा रहा है, अभी मैंने रावण का एग्जाम लिया तो युगों युगों से ईगो का मेंशन करा गया। ये आज का हमारे समय का नहीं है, ये हजारों सालों से ईगो के बारे में बोला जा रहा है। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने कहा था, वो भी मैंने पुरानी सत्संग संगत से सुना था कि जो उनकी टीचिंग्स में जो ईगो है वो उनकी आखिरी सीढ़ी है। और वो कहते हैं कि मैं उससे नीचे की सीढ़ी हटा देता हूँ। जिस दिन आप ईगो को त्यागते हैं आप मेरे को अपने पास पाते हैं। एंड इट इज अ टेस्ट फॉर अस कि हमको अपने ईगो को कैसे उसको त्यागना है। जितना हम अपने मन और मस्तिष्क को साफ करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और एक साफ बर्तन की तरह गुरुजी के पास जाएंगे तो वो हमारे बर्तन को भरेंगे और हमारी सोल से कनेक्ट होंगे। और जैसे कुम्हार है, पॉटर है, वो एक हल्की सी चोट देकर घड़े को इतना सुंदर रूप देता है, ऐसे ही गुरुजी हमारे व्यक्तित्व को बदलते हैं, हमारे कैरेक्टर को बदलते हैं। हम क्या थे और अब क्या है, मैं क्या थी और आज क्या हूँ, ये मेरी जर्नी में मैंने गुरुजी से सीखा। आई एम नॉट द सेम पर्सन। और जैसे कहते हैं कि हमें उनकी शिक्षाओं को समझना है और हम अपने आप को एक सेहतमंद इंसान समझते हैं, पर जब तक हमारे अंदर अहंकार है हम भोगी हैं, क्योंकि वह हमारा शत्रु है। अहंकार हमारा शत्रु है। और देखिए मैं 2-4 एग्जांपल्स देती हूँ। ये कृष्ण और राधा का बताती हूँ कि राधा ने कृष्ण जी को बोला कि आप मेरे से ज्यादा बांसुरी को प्यार करते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला कि बांसुरी अंदर से खाली है। और ये कमलेश मेहता आंटी के भी मैंने एक सत्संग में सुना था, उन्होंने बोला था कि बांस जो ये बांस होता है, ये देखिए इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, कितने प्रोसेस से वो छिलता है, कटता है, उसके बाद वो बांसुरी बनती है और उसमें जो छींक होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। उसके बाद फेमस रूमी पोएट सेड, do not feed your ego, it is पर्दा between you and God. एंड बहादुर शाह जफर ने क्या बोला जो लास्ट मुगल के, आई विल रिसाइट, आई होप आई रिसाइट इट राइटली। दिया अपनी खुदी का जो हमने मिटा, वो जब पर्दा सा बीच में था ना रहा, ना तो पर्दे में है वो पर्दा नशीन, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। और देखिए कबीर जी ने भी बहुत बोला है, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए, जब मैं था हरि नाई, अब हरि है तो मैं नाई। अब संगत जी, जो मेरा ईगो के ऊपर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा, वो मैंने कैसे सीखा, अब मैं वो उस पर आती हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी और मैंने उनके जब सत्संग साथ संगत में बैठ के पुरानी संगत के सुने, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं वो बहुत सिंपल है। अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मेरे को ये लगा कि मैं जब सत्संग शुरू करें कि मैं ये सत्संग में गुरुजी की टीचिंग्स को लूं। तो एक दिन मैंने ईगो के ऊपर यूट्यूब में डाला कि मुझे ईगो के ऊपर कोई शब्द मिले, गुरुबानी मिले, क्योंकि मैं अपने सत्संग में गुरुबानी का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो संगत जी देखिए, बाबा रविदास के, गुरु रविदास जी के 2 शब्द आए ईगो के ऊपर, तो मैं 2 ही लाइनें उसके रिसाइट करूंगी। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। और ये देखिए इसमें रविदास जी बाबा क्या कहते हैं, व्हेन आई एम इन माय ईगो यू आर नॉट देयर, एंड नाउ यू आर विद मी, आई एम नॉट देयर। और बाबा उसके बाद मेरा रविदास जी की वाणी से इतना कनेक्ट हो गया जब मैंने ये शब्द को सुना, और उसके आगे मेरा सत्संग बढ़ता गया जो अभी भी मेरा चल रहा है। अब देखिए रविदास जी क्या कहते हैं कि जब आपकी ईगो जाती है, आपके भ्रम जाने लगते हैं, अज्ञान का पर्दा हटता है और ईश्वर आपको हाथ और पैर से भी पास नजर आता है और हम सब सच्चित आनंद में रह सकते हैं और हम बाहर खुश हैं। उसके बाद रविदास इसी शब्द को आगे नेक्स्ट शब्द में कहते हैं, तो ही मोही अंतर कैसा, कनेक कटे जल तरक जैसा। कहते हैं जब तो ही आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये अंतर कैसा है, जैसे एक सोने और चूड़ी में और एक नहर में और पानी और जल में और उसके तरंग में, ये दोनों एक हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। एंड अब देखिए, बीइंग अ प्रैक्टिकल गुरु, हाउ ही गेव मी अ सत्संग ऑन ईगो, क्योंकि गुरुजी
आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली, जो आप उनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, गुरुजी आपको साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, मेरा ईगो के ऊपर मेरा एक छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी से जो मैं जुड़ी हूँ, मेरी अपनी लाइफ में मैंने बहुत ईगोस नहीं करी है। हाँ, छोटी मोटी जरूर ईगो आती है, आपको कभी आपको टेंशन चाहिए और आप चाहते हो कि आपको लोग प्रेस करें, इस टाइप की ईगोस। आप कभी कुछ अच्छा किसी के लिए काम करते हो तो आपको लगता है प्रेस करें, ये छोटी छोटी ईगोस मेरे अंदर थी। और देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे समझाया कि एक दिन क्या हुआ, लास्ट ईयर जब कोविड चल रहा था पीक पे, मैंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी का एक चैप्टर पढ़ने को मिला, जो मैंने फर्स्ट टाइम उस बुक को टच करा और उसमें से वो पढ़ा, और संगत जी अच्छा पढ़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीक को जो संगत आई उन्होंने पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि बहुत स्लो आवाज आ रही थी कि ये कैसे पढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे अंदर एक छोटा सा बहुत छोटी सी ईगो आई कि देखो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और मैं एग्जिट कर दी। आप देखिए मेरी उस टाइम इस बुद्धि ने नहीं समझा कि जो संगत सत्संग करती है वो अपनी पूरी इच्छा निष्काम से सत्संग करती है। अब वो किस सर्कमस्टांसेस में ये पढ़ रही थी, हो सकता है कि वहां पर बहुत मॉर्निंग हो या बहुत नाइट हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, टाइम फ्रेमवर्क सबके डिफरेंट जोन्स थे, और हो सकता है कि उनकी फैमिली बच्चे सो रहे हों। तो ये मैंने बाद में अपनी गलती को ऐसा रियलाइज किया और मैंने मन में उससे क्षमा मांगी। अब देखिए गुरुजी आपको कैसे समझाते हैं। 2 दिन के बाद मुझे एक यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, संगत आंटी ने कहा कि आप शिव पुराण की सेवा शुरू कर रही थी फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं चाहती हूँ कि ये पहला चैप्टर आप पढ़िए, क्योंकि शिव पुराण की मेरी गुरुजी के साथ बहुत डिवाइन जर्नी है, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो संगत जी मैंने बहुत अच्छी तरह उसको बनाया, और मैं कभी भी, और मैंने वीडियो नहीं करा था, उन्होंने मेरे कान में ईयरफोन लगाए और मैंने बहुत अच्छी तरह करा, सबको लिंक भेजा। आप देखिए वो ईयरफोन हिल गए या उन्होंने भी नहीं देखा। जब मैंने फेसबुक अपना खोला तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन थी, और किसी ने कोई भी उसमें सब एग्जिट कर गए थे। तो आप देखिए गुरुजी का बताने का मुझे तरीका था कि जो भी हम सत्संग करते हैं, जो हमारा भाव होता है, जो हमें समझ आता है, आप उसको अप्रिशिएट करिए, ना कि क्रिटिसाइज करिए। और मेरे अंदर बहुत थोड़ी सी ये थॉट आई थी, ना कि बहुत बड़ी। तो मैं माफी मांगती हूँ कि गुरुजी हाउ ही टीचेस यू। अब देखिए जब आप अपनी ईगो को, गुरुजी के साथ हमारी सोल का कनेक्शन है, जब आप अपनी ईगो को छोड़ते हो तो आपकी गुरुजी आपकी सोल को एलिवेट करते हैं, और गुरुजी का जो हमारा कनेक्शन है वो हमारी सोल से है। जैसे गुरुजी कहते थे कि मेरे से कोई चंगी चीज तो मांगता ही नहीं है, मैं आपकी सोल को देखता हूँ, और वो जिंदगी, सेहत और सब ऐश्वर्य तो वो उनके लिए वो देते ही है, पर असली जो उनका कार्य है वो हमारी सोल को एलिवेट करना है। और जब वो अपने पहले भी दर्शन देते हैं तो वो आपकी सोल को देखते हैं, तभी वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे कहते हैं ना, सदगुरु मैं तेरी पतंग। तो पतंग क्या है? पतंग हमारी सोल है। हमको इतनी ऊंची उड़ान उड़नी है। जब पतंग देखिए बहुत ऊंची उड़ती है तो वो गिरती नहीं है, और अगर जहां आप नीची होती है तो पतंग बार बार नीचे गिरती है, हमको ढील देनी पड़ती है। जब वो ऊंची चली जाती है देन इट इज साइलेंट। तो हमको भी इतनी ऊंची उड़ान उड़नी है, जैसे बबिया एक रेन वाटर के लिए अगेंस्ट द टाइड उड़ता है, और हमको भी वैसे ही बनना है। So what we should do, our soul, we should open our soul doors which are rusty, resistant to disuse. हमने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया. And give your soul to Guruji, and faith will keep your soul pure and intact in spite of difficulties, and be like an ocean absorbing rivers. आपको इतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक समुंदर की तरह नदियों को को समा सकें। आप गुरुजी की कितनी भी आपके ऊपर मुश्किलें आए, आप गुरुजी पे फेथ रखिए, और आप गुरुजी को अपनी आत्मा दीजिए। आपका विश्वास आपकी आत्मा को पवित्र रखेगा, और चाहे जितनी भी कठिनाइयां और आपके सामने कितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें आप हिल सकते हैं, पर आप सोचते हैं कि आपके साथ गुरुजी हैं। और संगत जी, मैं हर रोज रात को सोने से पहले अपनी रोज की दिनचर्या में सोचती हूँ कि आज मैंने किसको दुख पहुंचाया है, कुछ गलत बात तो नहीं बोली, और मैं गुरुजी से उसकी माफी मांगती हूँ। सो दिस इज व्हाट गुरुजी टीचेस यू। एंड देन आंटी टॉक्ड ऑफ टोटल सरेंडर।
So this is, I will, yes, total surrender is very difficult. Aunty ने जो chapter में mention करा, uncle ने निष्काम सेवा करी. अब मेरे हिसाब से मेरे लिए तो टोटल सरेंडर बहुत मुश्किल है. मैंने नहीं किया है, क्योंकि जरा सा भी मेरी लाइफ में कुछ होता है मैं विचलित हो जाती हूँ और बहुत परेशान हो जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि गुरुजी हमारे साथ पल पल हैं और वो दिखाते भी हैं. अब देखिए, व्हाट इज टोटल सरेंडर? When we have faith flowing in our soul, so no demand, no expectation, we have no self identity, we think through him. हुक्म में रहना सीखना है. जो हुक्म, यही बानी कहती है कि हुक्म में चलिए, हुक्म में रहिए, सेवा सिमरन सत्संग में ध्यान लगाइए, ताकि जो आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं आप उसको फेस कर सकें. अगर, क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं. एंड जैसे आंटी ने कहा था, गुरुद्वारे जब आप जाते हैं तो आप नीवे होके जाइए. तो इसका मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ये मैंने पढ़ा था, जब ये गोल्डन टेम्पल बना था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने जब ये बनाया टेम्पल, तो उन्होंने, आप देखिए, हम सीढ़ियां नीचे उतरते हैं और तब हम अंदर जाते हैं. तो इसका क्या मतलब है? उनका ये था कि आप नीवे होके जाइए गुरु के दरबार में. आप कहीं और कहीं भी जाइए, सब आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. यहाँ का कॉन्सेप्ट है. और यही आंटी ने एक पिछले चैप्टर जो मैंने पढ़ा था मिश्री प्रसाद में, तब भी मैंने ये बोला था कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी ब्लेसिंग्स बिखरी हुई हैं, आप लो. तो वो कैसे लेना है? हमें नीचा नीवा होके, जमीन से जब हम उठाते हैं तो हमें नीवा होके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है. तो दिस वाज माय टेक. And now I'll end with, Aunty ends with quote of Nobel laureate Rabindranath Tagore. He says, we come nearest to the great when we are great in humility. संगत जी, this is a very nice statement. मैंने बहुत सोचा, और मैं एक मोहल्ला 9 शब्द है जो मेरा को बहुत पसंद है, मैं रोज सुनती हूँ. उसकी मैं 4 लाइनें बोलूंगी, which tells the essence of these lines. सुख दुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान. Those who are not touched by pleasure, pain, greed, emotions and ego are God themselves. जो इन सब कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होते, वो भगवान है, भगवान का रूप है. अब ये मोहल्ला 9 है, ये गुरु तेग बहादुर जी का लिखा है, तभी इसको मोहल्ला 9 कहा जाता है. So in the end, I would say, when you see yourself in Guruji, you will see your own divinity. And connecting your soul with him, you will see him inside you. आप उनको अपने अंदर पाएंगे. As spiritual awakening is his prime purpose for his sangha. आप सबकी आत्मा है और हम सब में समाये हैं, और ये शक्ति आपके अंदर है. तो आप बाहर, जब ये शक्ति आपके अंदर आती है तो आपको बाहर का शोर से आप ब्लैंक हो जाते हैं. You become oblivious to these outside sounds. जब आप गुरुजी को इतना अपने अंदर रमाते हैं. और एंड में, as I always end with a Guru Bani, I'll end with 2 lines. ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम. Our light merges, blends with our master's light, and we become perfect. संपूर्ण, हम perfect बन जाते हैं. और संगत जी, ये इस जन्म में भी नहीं, हम मृत्यु के, इस डेथ के बाद भी we become perfect. और इसीलिए ये शब्द जो है, जब इंसान अपना चोला छोड़ता है तो ये गुरुद्वारे में जरूर गाया जाता है. And it is a beautiful these 2 lines. So I end with this. And शुक्राना गुरुजी का कि मेरे से अगर कोई गलती हुए तो गुरुजी आप माफ करिएगा. और कमलेश मेहता आंटी, thank you for guiding us, for making me read this book and extending my journey with Guruji. Thank you, Shukrana. Thank you very much. Thank you, Seema Aunty. Kamlesh Aunty. Yes. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Yes, Guruji. thank you for joining. सीमा आंटी ने बहुत अच्छा कहा, इतना अच्छा बोला, मतलब कि what I thought
I wanted to speak, she has done it. So that means Guruji ने जो थॉट्स हैं उसके दिमाग में और मेरे दिमाग में एक साथ डाली, एक जैसी डाली। सीमान जी ने कहा, एक भजन सा था, मैं तेरी पतंग। हम सब गुरु जी की पतंग। वो जो डोर है वो गुरु जी है। इसलिए संगत जी हम सब संभले हुए। गुरु जी ने हमें बहुत संभाला। जब कष्ट आते हैं, दैट मीन्स गुरु जी थोड़ी ढील दे देते, और जब गुरु जी ठीक से रखते हैं तो हम बादलों में लहराते हैं। So it was really very enjoyable to be with that divine. When you come into that meditative state, you have to work for that meditative state, because the moment you close your eyes, you should be in that meditative state 24/7. That he does it. We don't do it. When he wants us to come into that state, that condition, he makes you submissive. कोई गाला भी दे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ठीक है, दे दिया उसने कि दे दिया। अगर जो बंदे ने हमको बुरा कहा, भला कहा, गाली दी, गलोच की, whatever that the person, somebody has insulted you, just because Guruji has put that thought into that person, you come across that person, and that's why he has done that thing for you. ईगो है, उसमें ईगो है, उसने आपको नीचा समझा, अपने आप को सुपीरियर समझा, तो दे दे यार, कोई बात नहीं। जो सुना गुरुजी के लिए सुना, कोई गल नहीं, because he is our father. He is our father. माँ के ऊपर लोगों ने तो किताबें ही लिख दी, बढ़िया ही किताबा लिख छड़िया, पन्ने पार छड़े, बट जब बाप के ऊपर आता है ना, तो पेन में इंक खत्म हो जाती है। Nobody wants to appreciate the sacrifices of the father. गुरुजी हमारे फादर हैं। सारे गुरुजी दी मां नो कदी किसी ने सुनिया गुरुजी बापू दे बारे च गल करदे? नहीं सुना। गुरुजी माता जी, गुरुजी दी मां, गुरुजी दी मां। अरे गुरुजी के बाप
भी तो है। अगर your father is there, दुनिया के सारे खिलौने तुम्हारे कदमों में पड़े। Father is there, the whole universe is there. The whole universe is yours. फलाने दा पुत्र है, दुनिया झुक जाती है, because you have a father's name. पहले पुराने महाभारत में कुंती पुत्र, ये पुत्र, वो होता था, पर उसके बाद बंद हो गया सारा. So everybody is there. कहते हैं कि माँ जो है जन्म देती है, कंसीव करती है, and then everything is there. She carries you for 9 months. अरे what about the father? उसको क्यों तुम भूल जाते हो? The moment he comes to know his life partner has conceived, उसी दिन से आपका कैरियर बनाना शुरू हो जाता है. He thinks about it. लड़की होगी, ये होएगा, लड़का होएगा, इस तरह बनेगा, उस तरह बनेगा. He thinks about your career and he guides you all the time correctly. तो जब हम गुरु जी के साथ करते हैं, याद करते हैं, अरे बापू जी नु इते याद करो. सो संगत जी, हम कैसे गुरु जी ईगो मटाते हैं. एक आंटी थी जलंधर में, तो उसने अपने अंकल ने कहा कि इस तरह है ना, फलाने फलाने जगह पे ना बड़ा अच्छा डिनर मिलता है, सत्संग होता है, उस तो बाद डिनर बड़ा अच्छा मिलता है. वो लोग सत्संग में आए, मत्था टेका और लंगर प्रसाद का टाइम आ गया. गुरु जी कहते ना पूरा आ, कहते इत्थे डिनर नहीं मिलता, इत्थे लंगर मिलता है. जे डिनर करने तो कर जा, तू फौजी हैगी, जब मैसां च डिनर मिलता है, घरां डिनर मिलता है, इत्थे लंगर प्रसाद मिलता है. ए जेड़े तेरे नाल आए ना, तेरा उन्हें एक बारी नहीं किया कि डिनर है. He just kept quiet like a humble person. He followed behind you and he came. So संगत जी, ऐसे उसकी आंटी की उन्होंने वहां ईगो खत्म करी सबके सामने कि हद नहीं कहने की. ईगो सब में होती है. When a child is also born, तब से ईगो शुरू हो जाती है. Even a small child has an ego. Even the dog has an ego. Any man has an ego. Animal also has an ego in front of. सब सिद्धा लंगदा जानदा तुसी को कुछ नहीं कहेगा, but when you do it, he really bites you. Just because you have hurt his ego. मैं सिद्धा जा रहा था, इन्हें मैंने छेड़िया, ठीक है. So ego is an animal instinct in us. When ego comes,
गुस्सा आ जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पागलों की तरह हो जाने हैं, and we take revenge of that person. We start taking revenge. So when you go to the Almighty God, अपने गुरु जी, वो सबसे पहले हमारी ईगो खत्म करते, चुकना सिखा दे। कई मंदिर हैं, आप देखिए, पहले वैष्णो देवी हम लोग झुक के ही जाते होते थे ना, कितनी दूर तक चलते जाते थे वैष्णो देवी नीवे होके जाने से। सो मंदिर भी ऐसे, कई ऐसे मंदिर बने हैं जहां छोटा सा दरवाजा है, उसके बीच उससे आपको झुक के निकलना पड़ता। अगर आप झुक गए, सब कुछ पा लिया, जिंदगी सब कुछ मिल जाता है। कोई ऐसी चीज है नहीं मिलती। पेड़ आंधी के सामने जब खड़ा रह जाता है सीधा, वो भी टूट के गिर जाता। जो झुक गया वो बच गया। We cannot swim against the current. We should flow with the current. And when you flow with the current, you flow, तैरते जाने, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हम जब गुरु के दरबार में पहुंचते हैं, गुरु जी ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, you start flowing with his current. You flow with his emotion, you flow with his love, you flow with everything you get over there. You flow with it. You don't go against it. That is, गुरु जी कहते सन, जेडे तुसी मेरे को लाते हो ना, मैं तनु पांडे नु साफ करना वा, नींबू ते नमक लेके तनु साफ करना वा। जितनी हमारे अंदर मैल होगी, उतने हमें देर लगेगी गुरु जी से जुड़ते हुए। इसलिए it depends from individual to individual. कोई जल्दी झुकना सीख जाता है, कोई देर से झुकना सीखता है। इसलिए जब भी गुरु जी के पास जाते हैं, हम हमारा मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, सारी चीजें खत्म हो जाती। And that's why we go to it. And that's why Guruji takes us under his wings to make you a better human being. इस कर्म से निकाल के हम कितने अच्छे कर्म करके आए हैं, जो हम गुरुजी के साथ जुड़े। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, इसलिए गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, because rolling stones gathers no moss. जितना हम गुरु जी के साथ जुड़ते जाएंगे, पत्थर है पड़े पड़े, वहां पर हमारे ऊपर काई जमेगी, सब कुछ जमेगा। जितनी ज्यादा काई जमी, उतने ज्यादा हम गुरु जी से जुड़े। That shows, because we are not rolling,
We are just with Guruji and Guruji and Guruji. Thank you so much, Aunty, for giving me such a beautiful time, and Suresh uncle to giving me such beautiful platform, which I had never even imagined in my life कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, because I don't know how a word was spread, and I got a call from Kenya about it, and I'm feeling so happy that there is Sangat in Kenya also who has, कैसे कोई टेप पहुंचा क्या पहुंचा, I really don't know, but I got a call from there, and I'm so happy about this multilingual platform which Guruji has given me. And Guruji, मुझे हमेशा इस प्लेटफॉर्म से जोड़ के रखना, because I connect with Guruji's Sangat. If you want to love Guruji, love his Sangat first. बहुत प्यार करो उसकी संगत से, बहुत जुड़ो उसकी संगत से, बहुत जुड़ो, बहुत जुड़ो उस संगत से, तभी गुरुजी कहने में गुरु ये मेरी संगत नाल प्यार करता। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, एक दिन किसी ने कहंदा ना, एक कुड़ी जेड़ी है ना सिर्फ मेरे वास्ते आंदी है, that means I have been accepted by Guruji. उसकी क्लास में मेरा दाखला हो गया और मैंने पहुंच गई। MA BA डिग्री MBBA सारी करनी वो हमारे हाथ में है, and how you do it. Jai Guruji. Thank you so much, uncle. Thank you so much, auntie. Thank you, everybody, for giving me this opportunity to speak. Jai Guruji. Jai Guruji, Kamlesh auntie. Thank you, Kamlesh Aunty. What all the words that you say and the emotions that you convey, they're so beautiful. But the most beautiful of all of them is the love that we feel. I can speak for myself. It's Guruji's love that I feel in your presence and in what you share. It's such a blessing that you talk about love, but you demonstrate it. And that's a big learning for us to imbibe. I remember the very first session, you said that loving Guruji is loving Guruji Sangat, and loving Guruji Sangat is loving Guruji. They're synonymous. So cultivating that love in us is not something we can do on our own. May Guruji grace that upon all of us. Thank you so much. Thank you, Seema Aunty, for your eloquent reading. Like I mentioned earlier, my favorite part is to sit in silence and soak the words and emotions and imbibe any teachings that speak to my heart. And I'm not very good at analyzing stuff later on, but I am truly grateful to be in the presence of the Sad Sangat that Guruji has blessed me with, those who know his way, those who've walked the path that he has paved for us, and to demonstrate and be an example of the Sangat that he wanted us to be.
You living the life that you do is an example and an inspiration for all of us. And again, all his way, like I was reading that Guruji points the way and demonstrates by example and through practical. So it's all illustrated here as we partake in this session. Of course, listening to everything that I heard Seema Aunty talk about, anecdotes from Ramayana about Ravan, and a lot of in-depth insights. They call for contemplation, where she quoted Kabir and Rumi and Shri Guru Granth Sahib, calling us all to remain in Guruji's Sharan and seeing the divine light in all. It's a big reminder to all of us. But the big part that speaks to me, both from Seema Aunty and Kamlesh Aunty, is the one about personal transformation. Our Guruji is truly amazing, as he accepts us as we are with all our vices and continues to work on us as a kind, loving, and sometimes a tough master to help us become who he wants us to become. Truly amazing is his grace, as Kamlesh Aunty said, that he makes us flow. You just flow in the way that he wants you to take. That's again his meher, his kripa, his grace. Only that can make it happen. So thank you again, Seema Aunty and Kamlesh Aunty. And thank you to Guruji for getting us all together in this session, the writer, the reader, and the listeners. And above all, Guruji, his presence, his love, his warm embrace for all of us as he's the doer. With this, we'll go ahead and conclude today's session of the reading of the chapter 19, with a note that we'll continue with the next chapter the next Sunday at the same time. Thank you everyone for joining. And Jai Thank you Guruji. very much. Thank you. Jai Guruji, thank you. I guess with all this, we can all take Agya from Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji.